کشمیر آزاد ہوگا، ضرور آزاد ہوگا، ضرور آزاد ہوگا، مودی کے پنجے سے آزاد ہوگا، ریچھ اور بھیڑیے کے پنجے سے آزاد ہوگا، لیکن انشاءاللہ بزور شمشیر آزاد ہوگا۔ حضرات گرامی قدر انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا، لیکن بطور شمشیر آزاد ہوگا۔ حضرات گرامی قدر ہم یہ بات بتلائیں، ریاست کے اندر باہم تصادم کرنے والے گروہوں کی ہم نے آج تک حمایت نہیں کی، چنانچہ دنیا کے کسی بھی مقام کے اوپر اگر کوئی شخص ریاست کے علاوہ مسلح جدوجہد کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کی کبھی بھی حمایت نہیں کرتے، لیکن حضرات گرامی قدر اس جدوجہد کی آڑ میں پورے کے پورے جہاد کے پیراڈائم کو دہشت گردی بنا دیا جائے، ہم اس بات کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت کی دیواروں تک جاری رہے گا، دجال کے خلاف ہوگا، دجال کے لشکروں کے خلاف ہوگا، دجال کے ایجنٹوں کے خلاف ہوگا، مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت کرنے والوں کے خلاف ہوگا، مودی اور اس کے ہم نواؤں کے خلاف ہوگا، اسلامی ریاست کے دفاع کے لیے ہوگا، مظلوم انسانیت کو پنجائے ظلم سے آزاد کروانے کے لیے ہوگا، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں ملک کے عسکری اداروں سے جہاد کی اپیل کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ہم کہتے رہیں گے، جنرل قمر باجوہ صاحب کو کہتے رہیں گے، پاکستان کی افواج کے سربراہوں کو کہتے رہیں گے کہ آپ مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو جواب دیں۔ حضرات گرامی قدر لوگ جنگ سے گھبراتے ہیں، ہم بھی جنگ نہیں چاہتے، اس لیے کہ ہمارے حضور نے کہا تھا دشمن سے ملنے کی تمنا نہ کرو، لیکن جب اس کے مقابلے کے اوپر آپ وہ دشمن تل جائے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ سے عافیت کو طلب کرو، لیکن جب دشمن کے ساتھ مقابلے کا وقت آ جائے پھر صبر کرو، پھر استقامت کا مظاہرہ کرو، اور یاد رکھو جنت تلواروں کی چھاؤں کے تلے ہے۔ حضرات گرامی قدر جنت تلواروں کی چھاؤں کے تلے ہے، یہ فرمان کس کا ہے؟ یہ فرمان حضرت رسول اللہ کا فرمان ہے۔ حضرات گرامی قدر ایک تلوار ہے جو ظلم کی تلوار ہے، جبر کی تلوار ہے، استحصال کی تلوار ہے، استحصال کی تلوار ہے، لیکن ایک تلوار ہے جو حریت کی تلوار ہے، ایک تلوار ہے جو اللہ کی توحید کی تلوار ہے، ایک تلوار ہے جو پیغمبر زمان حضرت رسول اللہ کے جہاد کی تلوار ہے، ایک تلوار ہے جو صدیق کی صداقت کی تلوار ہے، فاروق کی عدالت کی تلوار ہے، ذوالنورین کی صحابت کی تلوار ہے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کی تلوار ہے، حضرت امیر معاویہ کے تدبر کی تلوار ہے، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی سپاہیانہ کارکردگیوں کی تلوار ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ تلواریں انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک اپنے نیام میں نہیں جائیں گی۔ حضرت مولانا ظفر علی خان نے صحیح معنوں میں مدینہ کی تہذیب کو بیان کیا۔ حضرت مولانا ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ نقشہ کھینچتے ہیں اور کمال کھینچتے ہیں۔ حضرت مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں ہاتھ میں تلوار ہو، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا، ہاتھ میں تلوار ہو اور دل میں ہو خوف خدا۔ یسروی تہذیب کتنی دل نشیں اور سادہ ہے۔ حضرات گرامی قدر صدیق اکبر کا دور ہو یا فاروق اعظم کا دور ہو یا حضرت ذوالنورین کا دور ہو یا حضرت علی المرتضیٰ کا دور ہو یا حضرت امیر معاویہ کا دور ہو یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور ہو یا عبد الملک بن مروان کا دور ہو یا ہارون الرشید کا دور ہو یا محمد ابن قاسم کا دور ہو یا طارق ابن زیاد کا دور ہو یا موسیٰ ابن نصیر کا دور ہو یا قتیبہ ابن مسلم کا دور ہو یا فتح علی ٹیپو شہید کا دور ہو یا حضرت حیدر علی کا دور ہو یا شاہ اسماعیل شہید کا دور ہو یا سید احمد شہید کا دور ہو یا مولانا جعفر تھنیسری کا دور ہو یا مولانا ولایت علی کا دور ہو یا مولانا عنایت علی کا دور ہو یا مولانا احمد اللہ کا دور ہو، حضور علیہ السلام کی تلوار جہاد چلتی رہی ہے، اور انشاءاللہ آج بھی پاک آرمی اگر کشمیر کے سیکٹر کے اوپر جہاد کا اعلان کرتی ہے تلوار جہاد چل کر رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہ بات آج پتہ اپنی قوم کو کس لیے بتلا رہے ہیں، اور میں آپ کے سامنے آج اس بات کو پتہ کیوں رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ دہشت گردی اور جہاد کے مفہوم کو گڑبڑ کرنے کی وجہ سے قوم کے اندر کئی مرتبہ جہاد کی ہر قسم کو دہشت گردی بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر زلزلہ آنے سے قبل اگر ریڈار اس بات کی نشاندہی کریں زلزلہ آ رہا ہے، اس کی پیش بندی کے لیے تدابیر ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر اگر آپ کا بلڈ ٹیسٹ اس بات کو انڈیکیٹ کرے کہ آپ کے
اندر हेपेटाइटिस के असरात मौजूद हैं तो उसकी पेशबंदी करनी चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर का आला आपको जायदा लेने के बाद इस बात की निशानदही करे आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उसकी पेशबंदी करनी चाहिए। जब जंग के बादल मंडला रहे हो तो फिर कौम को जिहाद के लिए माता तैयार करना चाहिए। उसके अलावा फिर उस दुश्मन से बचने का कोई और रास्ता नहीं हो सकता। हजरत अल्लामा शहीद ने अपने आखिरी खुतबे में कहा था, कौमें अगर बुज़दिली से जिंदा रहा करती तो कभी बहादुरों को मौत ना आती। हजरत अल्लामा ने कहा, तुम्हारे पास तो दुनिया का हर हथियार है, तुम्हारे पास तो फदाइया के तैयारे हैं, तुम्हारे पास तो 2500 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल हैं, लेकिन हमारा मंशूर तो ये है तुम हाली हाथ भी हो, तुम्हें फिर भी दुश्मन के सामने नहीं झुकना चाहिए। हजरत शहीद के आखिरी अल्फाज क्या थे? काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेदेर भी लड़ता है सिपाही। हजरत गिरामी कदर अल्लाह ताला के फजल करम से भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए और कलमाए तैयबा की बुनियाद पर बनने वाले वतन पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए और मजलूम कश्मीरियों की हिमायत करने के लिए अल्लाह ताला के फजल करम से पूरी की पूरी उम्मत मुहम्मदी अलैहि सलाम अपने आबाओ जदाद असलाफ के नक्शे कदम पे चलने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। हजरत गिरामी कदर अल्लाह ताला के फजल करम से हम इस बात को समझते हैं, हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। फमनितदा अलैकुम फातदू अलैहि बिमिस्ली मा तदा अलैकुम। जब तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म करता है, जब तुम्हारे ऊपर कोई ज्यादती करता है तो उस ज्यादती का जवाब फिर दूसरा गाल आगे करने से नहीं होता, फिर उसका जवाब पूरी की पूरी कुव्वत से होता है। वालकुम फिल किसासी हयातुन या उलिल अलबाब। तुम्हारे लिए किसास में जिंदगी है, बदले में जिंदगी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भारत की गोलाबारी से पाकिस्तान का दिफा करने वाले फौजी और मुजाहिद शहीद हो रहे हों, तड़प रहे हों और सेकुलरिज्म की चूरियां खिलाने वाले और साम्राज्य की एजेंटी करने वाले लोग मुफाहमत का तरस दे रहे हों। हजरात गिरामी कदर जिंदगी अगर मिलती है बदले से मिलती है, जिंदगी अगर मिलती है जिहाद की रूह से मिलती है, जिंदगी अगर मिलती है कुफार के सामने सीना सबर होने से मिलती है, जिंदगी अगर मिलती है काफिरों की आंखों में आंखें डाल के मिलती है और काफिरों के असलहे और उनकी फौजों की हैबत से घबराने की जरूरत नहीं। जंगों के अंदर असलहे से लड़ता है, टैंक से लड़ता है, तोप से लड़ती है, मशीन गन से लड़ती है, माटर गोले से लड़ता है, मिसाइल से लड़ता है, एटॉमिक वारहेड कैरियर के साथ लड़ता है और बड़े बड़े क्लस्टर बमों से लड़ते हैं। लेकिन हजरत अल्लामा शहीद ने कहा था, जहां पे कुव्वत में कमी होती है, जहां पर ताकत में कमी होती है, वहां पर मादियत से नहीं लड़ा करती, बल्कि वहां पे ईमान और रूहानियत मादियत से लड़ा करती है। और जब ये जज्बा इंसानों में आ जाता है फिर अर्श का रब क्या कहता है? कम मिन फियतिन कलीलतिन गालबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कितने ही गिरोह जो तादाद में थोड़े थे अल्लाह ने उनको बहुतों पे गालिब कर दिया। वल्लाहु मस्साबिरीन। इसलिए कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और तुम असलहे को देखते हो, तुम ताकत को देखते हो, तुम अस्करियत को देखते हो, तुम भारत की टेक्नोलॉजी को देखते हो, हम अर्श के रब की मदद को देखते हैं जिसने समर का ऐलान फरमा दिया। कम मिन फियतिन कलीलतिन गालबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कितने ही गिरोह जो तादाद में थोड़े थे बहुतों पे गालिब आ गए बिइज़्निल्लाह। इसलिए कि अल्लाह की मदद उनके साथ थी, अल्लाह का हुक्म उनके साथ था। अल्लाह ताला की मदद सब्र करने वालों के साथ होती है, डट जाने वालों के साथ होती है, आंखों में आंखें डालने वालों के साथ होती है। अल्लाह ने समर का ऐलान फरमा दिया, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौमा यक़ूमुल अशहाद। मैं मदद करूंगा अपने रसूलों की और रसूलों के रास्ते पे चलने वाले अहले ईमान की। अल्लाह तू कहां पे मदद करेगा? कहा कयामत के दिन भी मदद करूंगा, दुनिया के अंदर भी मदद करूंगा। हजरात गिरामी कदर इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद जरूर आएगी। अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान की नुसरत जरूर करेगा और इंशाअल्लाह
जब तक हम जिंदा हैं अपने मजलूम भाइयों के लिए आवाज़ हक को उठाते रहेंगे। और अगर जिहाद करने का वक्त आया तो उस वक्त भी इंशाअल्लाह पसकदमी का मुदाहरा नहीं करेंगे। और हजरात गिरामी कदर, तलवार जिहाद के चलने से कबल जब दुश्मन की धमकियां अपने पूरे उरूज में होती हैं, मुसलमानों का सबसे बड़ा हथियार अल्लाह के सामने मुनाजात होती हैं, अल्लाह के सामने इल्तिजाएं होती हैं, अल्लाह के सामने इस्तिगासे होते हैं। वो जनूदुल मलाइका को आसमान की बुलंदियों से नादिल फरमाने वाला है। और इस बात के पर एक छोटे से वाक़े के ऊपर अपनी बात को खत्म करूंगा। हज़रात गिरामी कदर, एक जंग के अंदर एक सहाबी जंग के मैदान से भागने वाले काफिर का ताकुब कर रहा था। जब वो काफिर का ताकुब करते करते एक मुकाम के ऊपर पहुंचता है, उसको एक आवाज आती है कि अभी अंदाज के अंदर हैजूम आगे बढ़ो। उसको उसके बाद शांटे के चलने की आवाज आती है। जब शांटा चलता है वो देखता है काफिर जमीन के ऊपर गिरा हुआ है और कनपटी के पास से उसका पूरा का पूरा सर स्याह हो चुका है। साहबी रसूल बारगाह रिसालत माब में हाजिर हुआ, कहा हजरत रसूलुल्लाह बड़ा अजीब वाकया हुआ, मैं काफिर का ताकुब कर रहा था, मुझे आवाज आई हैजूम आगे बढ़ो, और फिर मैंने जिस तरह कोड़े के चलने की आवाज को सुना और मैंने काफिर की लाश को जमीन के ऊपर तड़पते हुए देखा। हजरत रसूलुल्लाह ने कहा वो तीसरे आसमान से अल्लाह ने फरिश्तों की जमीयत को काफिरों के ताकुब के लिए भेजा था। हजरत गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फजल करम से ईमान हमारे पास है, तकवा हमारे पास है, लिल्लाहियत हमारे पास है, कलमा-ए तय्यबा हमारे पास है, ला इलाहा इल्लल्लाह की जंजीर हमारे पास है, अल्लाहु अकबर का नारा-ए रुस्ताहेद हमारे पास है, हजरत रसूलुल्लाह का दरसे हयात हमारे पास है, हिलाफत रास्ता का तर्ज जिंदगी तर्ज हुकूमत हमारे पास है। उनके पास क्या है? हनुमान की पूजा है, बंदर की पूजा है, नाग की पूजा है, सूरज की पूजा है, गाय की पूजा है। इंशाअल्लाह वो हमारा मुकाबला करने की जुर्रत नहीं कर सकते। और मैंने पिछले जुमे भी कहा था, स्ट्रेटजी के एतबार से भी, हिकमत अमली के एतबार से भी आज इंडिया की हिकमत अमली कमजोर है। उसकी वजह यह है बंगाल के अलहदगी पसंद जो थे वो इंडिया के साथ थे, पाकिस्तान के खिलाफ थे, लेकिन कश्मीर का मुसलमान पाकिस्तान के साथ है, कश्मीर की माएँ पाकिस्तान के साथ हैं, कश्मीर की बहनें पाकिस्तान के साथ हैं, कश्मीर की बेटियां पाकिस्तान के साथ हैं, कश्मीर के हुर्रियत पसंद पाकिस्तान के साथ हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह की जंजीर इन बॉर्डरों को तोड़ देगी, मोदी को गिरा देगी, हिंदू को बर्बाद कर देगी, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से कश्मीरियों को आजादी की मंजिल तक पहुंचा देगी। हज़रात गिरामी का दिन इंशाअल्लाह पहले कश्मीर का कंधे के साथ कंधा मिलाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह।